Good afternoon, good evening, everyone. So today we start a very important topic, that is transformation of heat. And heat can be transferred in three ways. Number one is the conduction process. Number two is the convection process. And number three is the radiation process. Among all these three, mainly the conduction and the radiation is very, very important, especially if you go through for your school exam. Radiation process is very, very important, but we start with the conduction. Before we start, for what is the basic difference between these three method? For conduction method, you need medium. Okay, you need medium, but no movement of medium. Means to move the heat from one point to another point, you need medium, but no movement of the medium. मतलब medium का कोई movement नहीं होगा. Second one is the convection process. In convection process, you need medium, and medium must be moved. And in radiation process, you don't need any medium, so obviously no movement of the medium. So that is the basic difference. So for conduction process, you need medium. So if the medium is good conductor, that means heat can transfer. But if the medium is insulator or bad conductor, heat is not able to transfer. So just 1 minute. So suppose you have a conductor, and these are the 2 points. Let temperature 1 and temperature 2. So to flow heat, it is given that the temperature 1 is greater than temperature 2. So as the temperature 1 is greater than temperature 2, so heat current move from high temperature towards the low temperature. So the amount of heat flow per unit time, that is, you can say heat current. Amount of heat flow per unit time is directly proportional to the cross-sectional area. This one is the cross-sectional area. Directly proportional to the temperature difference, high temperature minus low temperature, and inversely proportional to the separation between them. Inversely proportional to the separation between them. Let it be X. So we can write X. So when you equalize, what we can write? dq by dt, we use a constant a, t2 minus t1 and x. That constant is called coefficient of thermal conductance. That constant is called coefficient of thermal conductance. Is it clear, everyone? Yes, sir. Now you can treat it as a heat current. What do you mean by heat current? To flow current, you must need two poles. Like for current flow, means in electricity current flow, you must need two potential difference. Similarly, to flow water, you must need some 2-point difference, that is the height. Similarly, to flow heat current, means the amount of heat flow per unit time, you need the two temperature zone. So this temperature are, you can say, like the potential difference. So you can say this equals to temperature difference by the heat resistance. So if you suppose it as a heat resistance, and if you want to compare, this R is now equals to X by Ka. This R is called the heat resistance. Now you can connect them in series as well as you can connect them in parallel. So we can write now the arrangement of
conductors, arrangement of thermal conductors. So first one is series arrangement. So if we connect them in series, what happened? See, suppose we have two conducting wire, this one and different, this one, two different material, K1 and K2, and suppose this one is the temperature zone T2, this one is the temperature zone T1, and let T is the temperature in between, and temperature of 2 is greater than temperature of 1. What happened? Heat current flow from high temperature to the low temperature. So what we can say, the total heat current flow dq by dt. Is it okay, everyone? You understand what I want to say? Yes, Total sir. heat current flow from this one is equals to this one is equals to total. So you can say dq1 by dt, and for this one dq2 by dt is same. Means in series, what happened? Same amount of current flow. Now the temperature difference T2 minus T1, this one minus this one, what you can write, this minus this, T2 minus T plus T minus T1. Now if we use the formula, my heat current formula is temperature difference by resistance. So let that resistance is R2, this resistance is R1. So temperature difference, how we write this temperature difference? We write this temperature difference heat current into resistance. So here we can write dq by dt into resistance. Now for this one, T2 minus T. So heat current will remain same because they are same. And let for this one, resistance is R2. Let for this one, resistance is R1. So what we can say, key resistance, that is R2 plus R1, or we can say we can add them for n number of conductor. We can add R1 plus R2 dot 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 Rn. Is it clear? Same like resistance in series, we add them. Here also we can add them. Everyone, is it okay? Yes, sir. So this is called the series arrangement. Now what about parallel arrangement? Now for parallel arrangement, suppose we connect two conductor like this. This one is one conductor, this one is another conductor. Let it be the temperature 2, let it be the temperature 1. So obviously heat current flow from this one, let it be K1, let it be K2. So this one is R1, this one is R2. So this dq1 by dt, dq2 by dt. Now what happened, as the total heat current is the sum of them, so what we can write, total heat current dq by dt, total heat current dq by dt, that is dq1 by dt plus dq2 by dt. Is it okay? Now what we know, the temperature difference T2 minus T1, let R is the equivalent heat resistance. So for the first one, we can write T2 minus T1 by R1, T2 minus T1 by R2. So what we have, R, that is 1 by R1 minus 1 by R2. For N conductor, 1 by R is 1 by R1
1 by R2, 1 by Rn. Is it clear, everyone? Same like series and parallel. Yes. Now I can show you some one or two numerical, although I'm repeatedly saying the same thing. Okay, these are not that much important as the that radiation one. Okay, ये सब थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देके छोड़ दिया है स्कूल में, तो इतना शॉर्ट में ये सब शायद कराया भी नहीं होगा, तो इससे ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर भी हम लोग एक दो न्यूमेरिकल तो देखें, बट इन टर्म्स ऑफ एंट्रेंस एग्जाम they are very important, no doubt about that. Okay, so let's try some numerical. देखो, one question is given. Two identical rectangular slab of metal are welded end to end as shown in the figure A, as shown in figure A. So this one is the rectangular metal weld. Okay, and और इसमें this one temperature is 0 degrees centigrade, and this one means this end the temperature is 100 degrees centigrade, made of the same material. So K A K. End to end figure A, and 10 joule of heat flow in 2 minutes. So 10 joule of heat flow in 2 minutes. Now, how long would it take for the same amount of heat to flow through the slab if they are connected as shown in figure B? Now, in this figure B, this is the diagram. This is figure B. K. This one is the temperature zone 0. This one is the temperature zone 100 degrees centigrade. So same amount of heat flow in how much time? You understand the question? Is it clear for you? What is the question? Figure A, this is the arrangement C, and this one is the arrangement for the figure B. So in this one, that for 10 joule of heat flow, the time is 2 minutes. In this arrangement, for 10 joule of heat flow, how much time will take? So see, as both are K, so we can suppose let this is R, this one is R, this one is R, this one is R. So in series connection, what happened? Figure A, what you have 2R, figure B, what you have 1 by R. So you can write 2 by R. So figure B is R by 2. Is it clear, everyone? First of all? Yes, sir. Now see, the question is 10 joule 2 minute. The temperature difference is 100 minus 0 by R. R is how much? 2R. So what you have? 100 by 2R. That means this cancel, this is cancel. So R is 10. Whatever be the unit, you have some unit. So don't forget about the unit, but the value is R. Now, if this value is R, if we put it here, so 10 by 2 is how much? 5. Now, same amount of heat flow, 10, you want the time. Temperature difference is 100, and the resistance is R equivalent, means R by 2. So RB, R is how much? 10. So 100, R is how much? 10. So 10 by 2 is 5. So this 0 cancel, this is 2. So T is 1 by 2 minute. 1 by 2 minute means 30 seconds. Is it clear, everyone? Yes, sir. Yes, sir. I can show you one more question from here. Then we move on to the next part. Okay.
Second question, see, if I get time later on, means even suppose we start class 12 in April, and then also in I'm trying to arrange one lecture every Sunday for that numerical part for this portion, which I complete in very short time. Okay, this one is the second question. ये सब बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन इससे बनता है. A cylinder of radius r made of material of thermal conductivity K1. This one is your cylinder. Radius is r, made of material of thermal conductance K1. Radius is r. Okay, is surrounded by a cylinder of shell of inner radius r and outer radius 2r, made of material of thermal conductivity K2. Is surrounded by another cylinder whose inner radius is r, outer radius is 2r. Means I am talking about this one. I'm talking about this one, whose thermal conductivity is K2. Let the length is L. Two ends of the combination system are maintained at two different temperature. So let this one is T1, let this one is T2. Two different temperature. There is no loss of heat across the cylindrical surface, means from this surface, no heat loss. The cylinder across the cylindrical surface, and the system is in steady state. What is the effective thermal conductance of the system? See, in this question, they don't ask you R, they ask you K. But if you follow the same way, even if you go through the book, or if you see how the book try to solve this type of numerical, they are directly use K, but in that time you have some confusion. But if as I told you to follow this one, this is the best method, and you don't have any there is a minimum chance for you forget to take any value. Like, see, suppose this one is K1, this one is K2. So we can say from this one, heat flow is dQ2, and from this one, heat flow is dQ1. So can I say this is a parallel arrangement or series arrangement? Which one we can say it? Parallel. Yes. Why? Because the total heat flow, very good, parallel. dQ by dt, that is the sum. So whenever you add them, that means it is a parallel connection. Now see, the temperature difference is fixed, T2 minus T1 by R. That is for the one, what you can say, T2 minus T1 by let R1, T2 minus T1 by R2. So if you know this one, you can directly start from here also. That is also right. Means 1 by R1 is 1 by R1 plus 1 by R2. If you use this one also, then also right. Now, what is the formula of R1? R resistance is, what is the formula? L by Ka, if I am not wrong. So length is L. So 1 by L, K equivalent you have to find out. And area, that area is the total area. What is this total area? Obviously, 4 pi into 2r square. Is it okay, everyone? Yes, sir. Now, Sir, what is that written before pi? Huh? Sir, what is that written before pi? K equivalent, which we have to find out. Equivalent, okay. Okay, sir. Thermal equivalent of this one. Like we write now, resistance, equivalent resistance. So equi means equivalent, okay. So 1 by L by K1 pi. For this one, anyone tell me that blue one, what is the area? Pi r square. Pi r square, very good. Pi r square plus 1 by L by K2. So what is the area of the rest part? Means if I mark it by the red pen, is it visible red? What is the area of that part? What is the area of that part? Huh? Anyone? What is the area of that part?
Anyone tell me? Sir, pi pi r2 square minus pi r1 square. कितना कितना पट, एक r है एक 2r है। अरे इसका टोटल एरिया कितना है? कितना है ये? 4 pi r square. और ये कितना है? Pi r square. तो बाकी 3 कितना r बचा? square. 3 pi r square। Yes, sir. 3 pi r square, समझा? So now what happened? K equivalent into 4 pi r square, that is K1 pi r square by L. If you want, you can cancel that LL also. K2 3 pi r square by L. So you can cancel this L. K equivalent, you can cancel this pi. You can cancel this r square. So what you have, K1 plus 3K2 by 4. Is it clear? Yes, sir. So this one is your conduction process. Okay. After this conduction, then you have convection process. So I think, is it okay for everyone, conduction process? Yes, sir. Yes, sir. Next is convection process. आज तुम लोग एग्जाम दिया? हाँ सर. Yes, sir. कैसा हुआ एग्जाम? तुम्ही का के वोट दाओ. छोड़ो, I don't want to discuss. Convection process. So for convection process, what happened? Ki you need medium. That is the number one thing. Number two is that medium is also moving. That is called the convection process. I just give you one example, then you understand. Suppose you have a container. In this container, suppose you put some liquid. Okay, and now you try to hit it from the base. Okay, so as you try to hit it from the base, so what happened? Hotted liquid is lighter and moving upward. Is it clear? Yes, sir. And the cool liquid, which is more dense, try to fill up this one. So there is a flow of the liquid, isn't it? Yes, sir. So this flow is called convection process. So what happened? The rate of liquid flow dq by dt is directly proportional to the area of the flame. ये flame का हम कितना area है? Area of the flame. Area of the flame, and directly proportional to change in temperature. Del T is the change in temperature. What do you mean by change in temperature? Flame का एक particular temperature होता है और surrounding temperature क्या है? Means क्योंकि ये per second में ये बढ़ रहा है, because of this heat flow, ये क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है. तो टेम्परेचर के साथ सराउंडिंग का जितना ज्यादा होगा गैप, वो क्या करेगा? उतना जल्दी क्या करेगा? हीट फ्लो करेगा. Change in temperature, and when you equalize, you use a constant H suffix में C, that is called coefficient of thermal convection. Coefficient of thermal convection. तो देखो, कॉन्वेक्शन में ज्यादा कुछ नहीं है. कॉन्वेक्शन में कुछ बेसिक बातें हैं. जैसे convection is two type. Basically, the convection is two type. One is called the natural convection. One is called the forced convection. तो ये जो हो रहा है, that is the natural convection. Is it clear? Yes, sir. Can you give me one example of forced convection? चावनची. ना, उसमें तो नेचुरल कन्वेक्शन है. हमारा हार्ट का जो पंप है, क्योंकि हार्ट को क्या किया जाता है? हार्ट जो है वो क्या करता है? पंप करता है. पंप करके मेरा ब्लड को सर्कुलेट करता है फ्रॉम फीट टू हेड, है ना? सर से लेके पैर तक का क्या है? ब्लड सर्कुलेट होता है ना? कि ऐसा थोड़ी है
कि सर पे चोट लगने से खून निकलता है, पैर से चोट लगने से खून नहीं निकलता है। तो अगर वो नहीं निकल रहा है क्योंकि पैर का जो चमड़ा है वो मोटा है, ब्लेड मार के देखना, पता चलेगा पैर से ब्लड निकलता है कि नहीं। ट्राई करছো? अरे हम लोगों का तो कितना बार लगा है। सो इसका मतलब क्या है कि दोनों जगह से, पूरा बॉडी से मेरा टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, सब जगह पे क्या है कि अगर हम कहीं पे काटेंगे तो ब्लड निकलेगा, मतलब ब्लड विल फ्लो एवरीवेयर, है ना। यस सर। तो ये ब्लड फ्लो करके वो क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन रखता है। और गेटिंग माय पॉइंट। तो हर जगह का ऑलमोस्ट बॉडी टेम्परेचर सेम होता है, एक्सेप्ट कुछ कुछ जगह का। जैसे अगर हम जीभ का बात करेंगे, जीभ में शायद थोड़ा ज्यादा बॉडी टेम्परेचर लगे मिलेगा, बट ऑलमोस्ट सब जगह का टेम्परेचर मेरा सेम होता है ना। यस सर। Yes, sir. तो दैट इज एन फोर्स कन्वेक्शन, जहां पे क्या करता है, हार्ट पंप करता है। तो देखो जहां पे मतलब नेचुरल कन्वेक्शन के लिए तुम्हें ग्रेविटी चाहिए, क्योंकि जैसे देखो यहाँ पे ग्रेविटी है। सो द लोअर डेंस, मतलब व्हेन यू हिटेड समवन समथिंग सम लिक्विड, सो इसका क्या होता है, इसका डेंसिटी क्या होता है, कम हो जाता है, लाइटर हो जाता है। सो लाइटर वन मूविंग अपवर्ड अगेंस्ट ग्रेविटी, और द हेवियर डेंस मूविंग डाउनवर्ड टुवर्ड्स द डेंसिटी, मतलब टुवर्ड्स द ग्रेविटी। तो ये ड्यू टू ग्रेविटी दिस अप एंड डाउन हो रहा है ना। यस सर। तो अगर हम कहीं पे कोई ग्रेविटी फ्री स्पेस पे अगर हम खाना बनाने का कोशिश करें तो खाना नहीं पकेगा, क्योंकि नीचे वाला ऊपर जाएगा ही नहीं, ऊपर वाला नीचे आएगा ही नहीं। Yes, sir. तो वहां पे जैसे आप बोलोगे सर ऐसा जगह कहाँ मिलेगा, मानो कोई एलिवेटर या जहाँ पे स्पेसशिप का ट्रेनिंग दिया जाता है, या स्पेस पे ले जाके अगर हम स्पेस शटल के अंदर खाना बनाने चाहे तो खाना नहीं बनेगा, इवन जल पानी तक गर्म नहीं होगा। तो वहां पे हम लोगों को क्या किया जाता है, फोर्स कन्वेक्शन किया जाता है, जहां पे क्या होता है, हम लोग अलग से उस लिक्विड को ब्लो करवाते हैं, मतलब घुमाते हैं और हीट देते हैं, तो जाके वो गर्म होता है। ठीक है। तो কনভেকশন ইজ টু টাইপ, ওয়ান ইজ দ্য ফোর্স কনভেকশন, ওয়ান ইজ তাহলে দ্য গ্র্যাভিটির কোনো মানে নাম নিশান নেই ফর্মুলায়? কি গ্র্যাভিটির না কোনো দিস থিং হ্যাপেন বিকজ অফ গ্র্যাভিটি। এমন না যে কম গ্র্যাভিটি থাকলে কম হবে, বেশি থাকলে বেশি হবে। গ্র্যাভিটি না থাকলে হবে না, গ্র্যাভিটি থাকলে হবে। আচ্ছা। কারণ ডেনসিটি আপ এন্ড ডাউন তো গ্র্যাভিটির উপরে হচ্ছে না, গ্র্যাভিটি না থাকলে তো হবেই না। ठीक है। अब देखो इससे एक बार एंट्रेंस में एक छोटा सा क्वेश्चन आया था, बड़ी सुंदर सा क्वेश्चन था कि ऐसे करके एक लिक्विड दिया था और पहले तो सब बोला सर ये क्या है, किडनी। सो नहीं, ये किडनी नहीं है, ये एक ट्यूब है जिसके अंदर लिक्विड है, और यहाँ पे मैंने एक मोमबत्ती रखा है। तो लिक्विड का फ्लो किस साइड में होगा, क्लॉकवाइज क्या एंटी क्लॉकवाइज? I think anti-clockwise. सर क्लॉकवाइज। देखो वेरी सिंपल, जहां तुमने गर्म किया तो गर्म लिक्विड अगेंस्ट ग्रेविटी जाएगा। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, ये एंगल, ये टर्न है और ये सीधा है, तो ये सीधा जाएगा। क्यों? अगेंस्ट ग्रेविटी सबसे ज्यादा, जहां पे सबसे कम फोर्स मिलेगा, जहां पे मतलब सबसे कम रेजिस्ट जहां मिलेगा उधर जाएगा, तो ये सबसे कम रेजिस्ट है ना। हाँ सर। लेकिन यही मोमबत्ती को मैं अगर यहाँ पे लगाता तब क्या होता? স্যার দুদিক দিয়ে ফ্লো করতো? দুই দিক দিয়ে ফ্লো করে নাকি? জানি। अब देखो ये नीचे तो जा नहीं सकते लाइटर लिक्विड, तो क्या जाएगा? समझा मेरा बात? तो तुम सर कैंडल को अगर यहाँ ऊपर में लगा दिया तो, ऊपर जिधर में, वो 90 डिग्री वाला, यहाँ पे, नहीं सर उसके ऑपोजिट वर्टेक्स में। यहाँ पे हाँ सर। देखो मैं बता रहा हूँ, तो इसका मतलब इसको यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे नहीं लगाना है, ये पहला बात है। अब देखो क्या बात है कि जब भी हम किसी चीज को गर्म करते हैं, इसी कारण से जब भी हम किसी चीज को गर्म करते हैं तो हम लोग नीचे से गर्म करते हैं। ऊपर से गर्म करेंगे तो पहला बात है फ्लेम ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ नहीं जाएगा।
समझा मेरा बात? Yes, sir. तो दूसरा बात है, तुम यहां से गर्म कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे गर्म करने से तो ये कंफ्यूज हो जाएगा, शायद मूवी नहीं करेगा क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है। क्लियर? सर मतलब एक्सट्रीम सिचुएशन में भी एंटी ग्रेविटी, आई मीन टुवर्ड्स ग्रेविटी नहीं जाएगा? तुम यहाँ पे आ सकते हो, तो हॉरिजॉन्टल है तो रुक जाएगा। यहाँ पे इसका तुम्हारा मन के ऊपर कुछ नहीं है, तो ये हमेशा जो जो लाइटर है वो अगेंस्ट ग्रेविटी जाने का कोशिश करेगा बस। तो उसको जितना नजदीक से लाइटर मिलेगा। यहाँ पे देखो नीचे तो जा नहीं सकते, ऊपर जाएगा। यहाँ पे दो ऑप्शन है, तो ये इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड से सीधा उठना ज्यादा आसान है, वो सीधा उठ जाएगा। ये तुम्हारा जैसा सोच, मेरा जैसा सोचता नहीं है, तो इसके पास दो ऑप्शन है, इसको द इजीएस्ट वन चूज करना है। समझा? ओके सर। यस सर। और अगर इक्वल हो गया तो जाएगा नहीं। समझा मेरा बात? कि Yes, चलो भाई इक्वल है, सर का भी मन है, मेरा मेरा आका का लेफ्ट साइड में चल जाते हैं, हम लेफ्ट साइड में चले जाते हैं। ओ हो, मेरा आका तो लेफ्ट साइड नहीं, मेरा आका तो राइट साइड मांग रहा था, चलो घूम के फिर राइट साइड। ऐसा होता नहीं है। तब तो इनका भी प्राण होता, मतलब प्राण का मतलब समझते हो ना, वो हिंदी मूवी का फिल्म स्टार प्राण नहीं। इज इट क्लियर एवरीवन? yes sir. यस सर। और देखो यही कारण है कि जब भी हम लोग किसी चीज को गर्म करते हैं तो पेंदी का नीचे से हीट देते हैं, और जब भी किसी चीज को ठंडा करते हैं तो ऊपर से हीट देते हैं, मतलब कूलिंग ऊपर से करते हैं। इसलिए देखना किसी भी घर में नहीं देखोगे एसी जो है चौकी के नीचे लगाया है। एसी जो है कहाँ पे लगाता है? वॉल के टॉप पे लगाता है ना? Yes sir. हाँ। और हीटर कहाँ रखता है? हीटर कोई हाँ ऊपर नहीं सर, रखता है, नीचे की तरफ ही रहता है हीटर। हीटर रहता है नीचे की तरफ। ओके, सो मोटा मोटी यही कॉन्वेक्शन है। कॉन्वेक्शन में कुछ नहीं है, लेकिन इसलिए कॉन्वेक्शन उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है रेडिएशन, और रेडिएशन का भी जो मेन इंपॉर्टेंट है, दो तीन चीज है, उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, जिसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आता है, और न्यूमेरिकल कैसा आता है वो भी मैं बता रहा हूँ। ये एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है? तो यू कैन राइट न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। पहले रेडिएशन के बारे में थोड़ा बता देते हैं। रेडिएशन के लिए you don't need any medium, और क्या कहते हैं, you don't ऑब्वियसली मीडियम नहीं है तो मीडियम का मूवमेंट तो होगा ही नहीं, ठीक है? अब हम रेडिएशन में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे जो ऑब्जेक्ट जितना अच्छा एब्जॉर्वर है वो ऑब्जेक्ट उतना अच्छा एमिटर भी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो ऑब्जेक्ट में हीट जितना आएगा वो एब्जॉर्ब करेगा, वो उतना अच्छा एमिटर भी है, मतलब तुरंत वो एमिट भी करेगा। और जो जितना पुअर एब्जॉर्बर है वो उतना ही पुअर एमिटर भी है। और इसमें एक बात है, जो तुम्हारा ग्रुप है स्पेशली टेट्रा, टेट्रा मतलब 4, कहे सीता जी सुनो प्रभु, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम SN Pb। तुम लोग सेमीकंडक्टिंग एलिमेंट वगैरह केमिस्ट्री में पढ़ा है क्या? एन टाइप पी टाइप के 11th में है तुम लोगों का? ना सर, ना होता नहीं। अच्छा, तो चलो छोड़ो। तो ये जो टेट्रावैलेंट कंपाउंड है, इसमें सबसे पहले ये सबसे ज्यादा वेरी गुड एब्जॉर्बर एज वेल एज वेरी गुड एमिटर, फिर धीरे धीरे ये सब भी आता है। लाइक सिलिका, सिलिका को कहा जाता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड से क्या बनता है? सैंड बनता है। तो ये जो सैंड है, सैंड भी वेरी गुड एब्जॉर्बर एज वेल एज वेरी गुड एमिटर। तो इसी कारण से देखना डेजर्ट जहां पे है, अगर तुम इंडिया में राजस्थान वगैरह में कहीं पे गया होगा तो तुम्हें ये रियलाइज होगा दिन के टाइम में टेम्परेचर ऑलमोस्ट 40, 45, 50 तक चला जाता है, और शाम के टाइम में मतलब जहां सूरज ढला द टेम्परेचर फॉल अप टू 7-8 डिग्री सेंटीग्रेड। इसीलिए अरब जहाँ पे तुम्हारा पहले पूरा डेजर्ट था, अभी तो बिल्डिंग है, लेकिन पहले जहाँ पे पूरा डेजर्ट होता था तो उन लोगों का जो ड्रेस है वो अल्हा बीबी वाला ड्रेस, देखा है अल्हा बीबी वाला ड्रेस? वो पूरा ऊपर से लेके नीचे तक व्हाइट व्हाइट
सर पे पकड़ी, सिर्फ आंख दिखता है। हाँ सर। यस हाँ? सर। और बुर्का का ये भी एक कारण है, लेडीज लोग जो बुर्का पहनता है, इसका भी ये भी एक कारण है कि तुम देखोगे ये जो कल्चर है ये बहुत गर्म वाला कल्चर का है, जहां पे क्या है कि साइंटिफिकली दिस थिंग्स हेल्प यू। किस तरह का हेल्प करता है? उस वेदर के लिए हेल्प करता है। क्या हेल्प करता है कि दिन के टाइम में बहुत ज्यादा गर्मी और रात के टाइम में बहुत ज्यादा ठंडा, तो तुम स्वेटर लेके गया और रात में स्वेटर, दिन में स्वेटर पहन नहीं सकते हो तो नहीं लेके गया, रात में इतना ठंडा लगा, बिना स्वेटर का सर्दी खांसी, तो क्या होता है कि दिक्कत होता है। तो इसलिए ये लोग क्या करता है, पूरा टॉप टू बॉटम एक ऐसा ड्रेस पहनता है, ना हीट को देगा ना हीट लेगा। तो अंदर का टेम्परेचर एज इट इज, बाहर का टेम्परेचर एज इट इज, तो दिन में भी उसको क्या है, गर्मी नहीं लगेगा, रात में भी उसको ठंडी नहीं लगेगा। गर्मी कब लगेगा? व्हेन द आउटसाइड टेम्परेचर इज ग्रेटर देन माय बॉडी टेम्परेचर। तो बाहर से हीट मेरे अंदर में आएगा, तो जब बाहर से हीट मेरे अंदर में आएगा तब मुझे लगेगा मेरे शरीर में एक लू टाइप का कुछ लग रहा है, मतलब मुझे गर्मी लगेगा। और ठंडा क्यों लगता है? ठंडा में तुम देखना बाहर का जो टेम्परेचर है उससे मेरा बॉडी टेम्परेचर ज्यादा है, तो मेरा बॉडी टेम्परेचर अगर ज्यादा है, मेरे बॉडी टेम्परेचर से हीट बाहर चला जाएगा, तब मुझे ठंडा लगेगा। कभी गौर करके देखना, बुखार जब आता है ठंडा तब लगता है जब तुम्हारा शरीर का टेम्परेचर 102 103 होता है कि नहीं? बोलो। यस सर। तो इसका मतलब मेरा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाने के कारण मेरा बॉडी से आप हीट बाहर जा रहा है, तो जब हीट बाहर जाएगा तो क्या होगा, मुझे ठंडा लगेगा। तो वो जो कपड़ा है उससे ना हीट बाहर जाता है ना हीट अंदर आता है, तो इट विल बी यूज एज ए इंसुलेटर, क्योंकि वो इंसुलेटर का काम करता है, तो मेरा शरीर का टेम्परेचर को मेंटेन रखता है बाहर से। तो अब जहां पे ये है वहां के लिए ये अच्छा है। अब तुम अरबियन वाले को अगर सिलीगुड़ी में भेज दोगे तो वो पहन के घूमोगे तो दिक्कत होगा, क्योंकि यहाँ पे उतना ज्यादा टेम्परेचर चेंज होता नहीं है, बाहर का टेम्परेचर उतना ज्यादा नहीं है और अंदर का भी टेम्परेचर उतना चेंज नहीं है, तो तुम्हें दिक्कत होगा। मतलब सब जब नॉर्मल है तुमको उसमें गर्मी लगेगा। हाँ, इज इट क्लियर एवरीवन? यस। यस सर। अच्छा, एक और बात है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट हीट एमिट भी करता है, हीट एब्जॉर्ब भी करता है। अगर अगर एमिशन ऑफ हीट इज ग्रेटर देन एब्जॉर्प्शन, ट्राई टू अंडरस्टैंड, हीट एमिशन से हीट एब्जॉर्प्शन ज्यादा है, देन द प्रोसेस इज कॉल्ड हीटिंग। मतलब किसी भी चीज को गर्म करना, मतलब वो जितना हीट रिलीज कर रहा है उससे ज्यादा हीट वो ले रहा है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट हीट एमिट ज्यादा किया और एब्जॉर्ब कम किया, देन द प्रोसेस इज कॉल्ड कूलिंग। ओके, तो इसमें क्या है, रेडिएशन में क्या है, हर एक ऑब्जेक्ट हर एक टाइम हीट एमिट भी करता है, हीट एब्जॉर्ब भी करता है। अच्छा, और दो बात है, एक है हीट एमिट, एक एब्जॉर्ब हुआ, और दूसरा है हीट ट्रांसमिट, और हीट रिफ्लेक्ट। जो ऑब्जेक्ट जितना अच्छा हीट एब्जॉर्बर और हीट एमिटर है, वो ऑब्जेक्ट उतना ही खराब, उतना ही पुअर हीट रिफ्लेक्टर है एंड हीट ट्रांसमीटर है, मतलब वो बाजू वाले को नहीं देगा। और ठीक इसका उल्टा है, जो ऑब्जेक्ट जितना अच्छा हीट रिफ्लेक्टर है और हीट ट्रांसमीटर है, वो उतना ही पुअर हीट एब्जॉर्बर है एंड हीट एमिटर है। जैसे अगर तुम देखोगे, स्पेशली रफ एंड ब्लैक सरफेस आर वेरी गुड हीट एब्जॉर्बर and heat emitter, very poor heat transmitter and heat reflector, ठीक है। एंड तुम्हारा जो माने व्हाइट एंड शाइनी सरफेस, दे आर वेरी बैड हीट एब्जॉर्बर एंड हीट रिफ्लेक्टर एमिटर, बट वेरी गुड हीट एमिटर, हीट रिफ्लेक्टर एंड ट्रांसमिटर। इसलिए तुम देखना कि जो ब्लैक सरफेस है वो ज्यादा गर्म रहता है, ठीक है, और जहां तुम उसमें धूप देना बंद कर दो वो तुरंत ठंडा भी हो जाता है। लेकिन जो, जैसे एक मिरर को तुम सूरज के एकदम किरणें के सामने बहुत देर रख दो, देखोगे वो गर्म ही नहीं हुआ, क्योंकि वो हीट लिया ही नहीं, वो रिफ्लेक्ट कर दिया। इज इट क्लियर? यस सर। अब Yes, इसके ऊपर बेस करके सबसे पहले है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। मैं इसमें ज्यादा अभी टाइम नहीं देना चाह रहा था, क्योंकि ये सब है इंपॉर्टेंट, लेकिन हमारे पास समय ही नहीं है, बाकी सब कुछ है, ठीक है। तो
न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन ने क्या बोला है अकॉर्डिंग टू न्यूटन, देखो दिस डिराइवेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस डिराइवेशन 1 न्यूमेरिकल 5 मार्क्स एकदम मतलब गारंटी। हाँ देखो अकॉर्डिंग टू न्यूटन, इफ यू वांट यू कैन राइट आल्सो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, rate of lose of heat मतलब dq by dt is directly proportional to the temperature difference T minus Ts, and this one is losing मतलब temperature मतलब rate of cooling जो है धीरे धीरे घट रहा है। Are you getting my point? Yes, sir. So that's why we use a negative sign. इसको मैं अगर इधर ले आऊं dq by dt is directly proportional to minus T minus Ts. When you equalize, we use a constant k T minus Ts. Any constant you can use any other constant also. So let it be equation number 1. Is it clear? Yes, sir. Now from definition of specific heat capacity, dq is mass specific heat change in temperature. So if we put this equation 2 in equation 1, what we have mc dt by dt, that is minus k T minus Ts. So अगर मैं ये पूरा का पूरा को इधर ले जाऊं तो मेरे पास क्या आएगा, देखो dt by T minus T surrounding, that is minus k by mc dt. So k भी कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है, ओवरऑल को मैं एक कांस्टेंट माइनस b dt where b equals to k by mc is constant. Can we write this? 4000 5000 পুরো দেশে কি কিছু না Is it okay? 4000 5000 কি হয়েছে? কিছু না স্যার, বল আরে স্যার করোনার কথা ছিল, 4000 5000 লোকের করোনা হয়ে গেছে। এত পুরো দেশের কথা। मुझे कितना अच्छा उम्मीद मिला था जनवरी में कि ब्रिटेन में फिर नया एक कोरोना वायरस आया है जिसके कारण ब्रिटेन फिर बंद कर दिया। मुझे कितना उम्मीद मिला कि चलो भाई और कुछ दिन बंद रहेगा। So log T minus Ts, you can say base E, that is minus Bt. Is it clear, everyone? Yes, sir. Yes, sir. So T minus Ts e to the power minus Bt. So T equals to Ts plus e to the power Bt. That derivation is very, very important. With this graph, इस ग्राफ को देखो, exponential minus मतलब exponentially decrease e to the power minus Bt. B is a constant, so exponentially decrease कहां तक decrease करेगा? Surrounding temperature तक. Yes, sir. मतलब किसी का टेम्परेचर अगर T है तो ये घटते घटते, मानो तुमने पानी को 100 डिग्री तक गर्म किया और फिर छोड़ दिया, अगला दिन जो तुम्हें टेम्परेचर मिलेगा कितना मिलेगा? थोड़ा कम ही मिलेगा। थोड़ा कम, ज्यादा कम बोल के कुछ नहीं होता है। मानो तुमने एक पानी को पूरा गर्म किया, गर्म करके छोड़ दिया और अगला दिन उसका टेम्परेचर लेते गया, अगला दिन मतलब लॉन्ग टाइम, तो लॉन्ग टाइम बाद जब उसका टेम्परेचर देखोगे, दैट टेम्परेचर इज द सराउंडिंग टेम्परेचर। Yes, sir. है ना? तो सराउंडिंग से नीचे तो नहीं आएगा, तो ये जीरो नहीं होगा। देखो अगर ये टीएस नहीं रहता तो दिस शुड बी जीरो। तो ये टीएस के कारण क्या होता है, ये घटते घटते आके लॉन्ग टाइम में जाके सराउंडिंग टेम्परेचर के साथ मिल जाता है। इज इट ओके एवरीवन, यू अंडरस्टैंड? यस सर। Yes, sir. टेम्परेचर टाइम। तो ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसका न्यूमेरिकल सॉल्व उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चा लोग इस फॉर्मूला से न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाता है और दिमाग खराब करके आता है, कभी नहीं मिलेगा आंसर। तो इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करने का भी मैं टेक्निक बता देता हूँ, एकदम सिंपल सा टेक्निक है। तो ये 3 मार्क्स और वो न्यूमेरिकल 2 मार्क्स, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहेगा ही रहेगा। इसको एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो।
कर लिया? यस सर। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका क्या है। वीडियो मेरा ऑन है, अगर तुम लोगों को नोट बनाना पड़ेगा तो तुम लोग वीडियो को एक बार देख के नोट बना लेना, ठीक है। मैंने बाकी वीडियो दे दिया है आज ग्रुप में, देखा ना। और है मैं सर। जो चाह रहा था कि क्योंकि थोड़ा जल्दी में जल्दबाजी में कर रहा हूँ, मैं चाह रहा था तुम लोग को नोट जो है ना, मैं जो जैसे फ्लूइड का फुल नोट दिया है वैसे करके मैं कोशिश कर रहा हूँ नोट पूरा वैसे ही बनाने का, ठीक है। मतलब जिसमें बोर्ड एंट्रेंस दोनों ही रहेगा। सो इन फ्यूचर यू कैन कंपेयर ऑल्सो कि कहाँ तक पढ़े हैं और कहाँ मुझे एक्स्ट्रा चाहिए, सर से हम बाद में वो ले सकते। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। जैसे देखो Yes, sir. हमने थर्मोडायनामिक्स जो पढ़ा उसमें सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर कुछ नहीं पढ़ा, पर मैं जो नोट बना रहा हूँ उसमें मैं वो सब भी बना रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो उसको तुम्हारा फ्यूचर में काम देगा, क्योंकि जब तुम लोग 12th में जाओगे तो उसके बाद ये सब भूल जाओगे, तब ये नोट ही तुम्हारा सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो देखो क्वेश्चन है, द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी फॉल्स फ्रॉम 90 डिग्री सेंटीग्रेड to 80 degrees centigrade, 90 degrees centigrade to 80 degrees centigrade in 5 minutes, in 5 minutes. And the surrounding temperature is 25 degrees centigrade. Okay. Then time taken to fall the temperature from 80 degrees centigrade to 70 degrees centigrade. ऐसा क्वेश्चन देगा। अच्छा एक और बात है, देखो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्टीफेंस लॉ। सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एंड स्टीफेंस लॉ? दोनों में ही कूलिंग रेट बताया है, लेकिन याद रखना न्यूटन्स लॉ में वो छोटा छोटा रेंज करके देगा, ठीक है। और स्टीफेंस लॉ में क्या होता है, डायरेक्ट, मानो सन का टेम्परेचर है 4000 या एक मेटल को गर्म किया 4000 डिग्री सेंटीग्रेड, सराउंडिंग टेम्परेचर इज दिस, कितना टाइम लगेगा, मतलब सीधा डिफरेंस। यहाँ पे क्या छोटा छोटा रेंज में 70 से 80, 80 से 60 ऐसे करके छोटा छोटा रेंज में जाएगा। मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग छोटा छोटा रेंज के लिए है, ठीक है। स्कूल खुलने से इसका प्रैक्टिकल भी करवा के देख सकता था, इतना टाइम लगता है इसमें तो ऐसे होगा नहीं। जो भी हो 80 डिग्री सेंटीग्रेड टू 70 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखो इसके लिए जो फॉर्मूला है ये याद रख लेना, दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। T2 minus T1 by time, T2 minus T1 by time, that is K equivalent या K T average minus T surrounding, ये है फॉर्मूला। वो लॉग उग वाला फॉर्मूला नहीं करना, कुछ कुछ जगह पे देखोगे लॉग उग से क्या है, सिर्फ ये फॉर्मूला यूज करना। तो देखो 90 से 80 गया, डिफरेंस कितना हुआ 10, टाइम कितना लगा 5, के यू डोंट नो, टी एवरेज ये दोनों का एवरेज कितना हुआ 85 and surrounding temperature is 25. Is it clear? Yes, sir. Everyone, is it okay? यस सर। So यहाँ पे आया 2K, यहाँ पे कितना आया 60 ना, K is 2/60, that is 1/30। तो तुम्हें K का वैल्यू मिल गया। जहां तुम्हें K का वैल्यू मिल गया, अब हम क्या करेंगे, for 80 to 70, 10 you need time, K you now know 1/30, और एवरेज ये दोनों का कितना हो गया 75 minus 25। So you can easily find out the time, 50/30, 0 गया, so T is 30/5, that is 6 minutes। तो एक चीज देखो, एक और चीज सोचने वाला है कि जैसे जैसे देखो, जैसे जैसे ये जा रहा है सेम टेम्परेचर में रेंज तुम्हारा काफी बढ़ जाएगा। तो देखो 80 से 90 से 80 5 मिनट लगा, 80 से 70 6 मिनट लगा, 70 से 60 शायद और ज्यादा लगेगा। करते करते जितना रूम टेम्परेचर के आसपास आएंगे उतना ज्यादा टाइम लगेगा। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. सो दिस इज द ओनली फॉर्मूला, और इससे तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट देगा। कभी सराउंडिंग टेम्परेचर पूछेगा, बाकी चीज दे देगा, कभी बाकी चीज दे देगा, सराउंडिंग टेम्परेचर पूछेगा, इसका क्वेश्चन पूछेगा तो इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट इज स्टीफेंस लॉ। इज इट क्लियर एवरीवन? स्टीफेंस लॉ देखो क्या है,
radiant energy emitted by a particle perfectly black body. अब ये perfectly black body क्या है? Perfectly black body उसको कहते हैं जो जितना हीट आया ये पूरा का पूरा एब्जॉर्ब किया, और जब तुम हीट देना बंद कर दिया या जितना का जितना दिया पूरा का पूरा एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के बाद तुरंत वो रिलीज कर देगा। मतलब तुम उसको गर्म करना बंद कर दो, वो तुरंत ठंडा हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. मतलब जितना हीट एब्जॉर्ब किया इंस्टेंटली पूरा का पूरा हीट एमिट कर देगा। तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी तो होता नहीं है, लेकिन जो जितना अच्छा माने टेंस टू ब्लैक बॉडी, मतलब जो जितना अच्छा एब्जॉर्बर होता है वो उतना ही अच्छा एमिटर भी होता है। तो रेडिएंट एनर्जी एमिटेड बाय परफेक्टली ब्लैक बॉडी पर यूनिट एरिया per second is directly proportional to the fourth power of the absolute temperature. मतलब amount of heat flow per unit time per unit area is directly proportional to the T to the power 4, where T is the absolute temperature. Absolute temperature. Is it okay? Yes, sir. So when you equalize, देखो dq by dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है a t to the power 4, और जब मैं इसको इक्वलाइज करूंगा एक कांस्टेंट आता है सिग्मा a t to the power 4. This sigma is called the Stephen's constant. Stephen's constant, इसका जो वैल्यू होता है ये बड़ा सुंदर है, 5.67 into 10 to the power -8. 5678 याद रखना है, 5.67 into 10 to the -8. अब देखो एनर्जी के लिए देखो जूल पर यूनिट टाइम, सो कैन वी राइट व्हाट? जूल पर यूनिट टाइम कैन वी राइट व्हाट? Yes, sir. मीटर स्क्वायर पर केल्विन टू द पावर 4. ओके, इज इट ओके? Yes, sir. अब देखो ये है स्टीफेंस कांस्टेंट या स्टीफेंस लॉ। तुम्हें अगर स्टीफेंस लॉ बोलेगा तो तुम्हें ये लिखना पड़ेगा और परफेक्टली ब्लैक बॉडी बोलना पड़ेगा, लेकिन इन रियल लाइफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी बोल के कुछ होता ही नहीं है। तो बाद में स्टीफेंस लॉ को मॉडिफाई किया गया। क्या मॉडिफाई किया गया कि यहाँ पे बोला गया कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक और कांस्टेंट दैट इज कॉल्ड द ई। मतलब हम जब इसको इक्वलाइज करेंगे यहाँ पे एक ई लेंगे, ई इज कॉल्ड द एमिसिविटी, EMMISIVITY, एमिसिविटी। ये एमिसिविटी का वैल्यू जो है ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। मतलब 1 नहीं होगा क्योंकि दुनिया में परफेक्टली ब्लैक बॉडी करके कुछ है नहीं, और 0 भी नहीं होगा, मतलब दुनिया में ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जो तुम हीट दे रहे हो वो हीट लेगा ही नहीं। समझा मेरा बात? Yes, sir. अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा मिल जाए जो हीट लेता ही नहीं है, तुम उसको सूरज के सामने भी भेज सकते हो। समझा मेरा बात? Yes, sir. वो हीट लेगा ही नहीं। तो इसीलिए हम लोग जैसे रिसेंटली नासा ने एक सैटेलाइट को सूरज में भेजा था ना, कोई बोल सकते हो उस सैटेलाइट का नाम क्या था? मतलब सूरज के में भेजा, मतलब वो सूरज का जितना नजदीक तक फोटो ले सकता है, फिर तो धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, या तो गल जाएगा या गायब हो जाएगा। मालूम नहीं है, 1-2 साल पहले भेजा फर्स्ट टाइम कोई सैटेलाइट, मतलब सूरज का एकदम नजदीक तक जाके फोटो लेगा, और इसको लेके बहुत ये हुआ। हमारा इंडियन कुछ एस्ट्रोलॉजर जो हाथ देखता है बोला ये सब तो हम लोगों का पहले ही किया है। हमारा अर्थशास्त्र में हनुमान जी ने सूरज भगवान को मुंह के अंदर मुंह ले लिया था। हनुमान जब जा रहा था उस समय सूरज के किरणों के बारे में बोला गया। अरे साला गांडू, किरणों के बारे में बोलना और इसका हर एक रे का स्टडी करना एक बात है, Recording अच्छे। क्या बोलोगे, जो भी हो। तो टेल मी वन थिंग कि व्हाट इज द नेम ऑफ दैट सैटेलाइट? पार्कर। चेक करके देखना, पार्कर। तो उसका जो बाहर का जो सरफेस है वो मतलब क्या है, लेस एमिशन
एमिसिविटी जितना कम, मतलब टेंस टू जीरो, मतलब वो ऐसा मटेरियल से बना होगा, एग्जैक्ट जीरो तो हो नहीं सकता, जितना ज्यादा हीट को रिफ्लेक्ट कर दे। समझा? यस सर। तो हीट को रिफ्लेक्ट करेगा तो वो ज्यादातर जा सकेगा, और जाके वो मतलब एकदम सोलर जो हाइड्रोजन बम जो एक्सप्लोजन होता है उसका बाद जो सराउंडिंग का जो रे आता है वो कैसा होता है, उसका वेव नेचर क्या होता है, ये सबको स्टडी करने के लिए किया गया है। और उसको शायद जाने में, देखना गूगल में है, हम बहुत पहले ही भूल गए हैं उसको, जाने में कितना मतलब अर्थ से सूरज की तरफ जाने में, मतलब धीरे धीरे वो सूरज का ग्रेविटेशन फील्ड में आ जाएगा, फिर धीरे 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 वो सूरज में चला जाएगा। अब सूरज में जाते जाते शायद वो खत्म हो जाए, जब तक लास्ट पिक्चर वो क्या भेजा वो भी मैटर करता है। तो इसके लिए लगभग 4-5 साल लगेगा वो सूरज तक जाने के लिए। तो इसका देखना बहुत अच्छा है, पार्कर बोल के है। तो दिस इज कॉल्ड द एमिसिविटी। तो तुम लोग बाद में इंपॉर्टेंट नोट बोल के लिख सकते हो कि यहां तक लिखा, फिर इसमें लिख सकते हो कि एज नो बॉडी इज परफेक्टली ब्लैक, so we use another constant called emissivity, so rate of flow of heat dq by dt is equals to sigma ea t to the power 4। ठीक है? Is it okay? अब देखो इसके ऊपर भी बहुत सुंदर सुंदर क्वेश्चंस रहता है फॉर बोर्ड एग्जाम एज वेल एज फॉर एंट्रेंस एग्जाम। सो लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चंस। रिकॉर्डिंग तो ऑन আছে ना? है सर। Okay. The question is that a black body is maintained at, ध्यान से समझा, a black body is maintained at 27 degrees centigrade and 927 degrees centigrade. What will be the ratio of the radiant energy? So what we can say, radiant energy मतलब dq by dt है। Radiant energy is directly proportional to t to the power 4। बाकी का सब तो कांस्टेंट है कि नहीं, बोलो? हेलो? यस सर। तो और यहाँ पे बाकी सब कांस्टेंट हो गया, तो मेरा रेडिएंट एनर्जी 2 बाय रेडिएंट एनर्जी 1 दैट इज इक्वल्स टू t टू द पावर 24 या t टू द पावर 14। अब टेम्परेचर क्या है? 927 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब क्या हो गया 1200 केल्विन, 1200। और यहाँ पे है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 300 केल्विन का पावर 4। तो 0 0 गया, ये गया 4, तो 4 का पावर 4 कितना हो गया? 256। क्लियर? ओ सर। ठीक है। अच्छा, इसका एक और क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन में उन लोगों ने क्या किया कि एरिया उरिया कुछ नहीं दिया। दूसरा जो क्वेश्चन दिया है, टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी इज ट्रांसमिटेड बाय 50%, देन इन, नहीं ये वाला नहीं, रुको, एक और क्वेश्चन था ना, हाँ। टू स्फीयर ऑफ द सेम मटेरियल हैविंग रेडियाई 1 मीटर एंड 4 मीटर। ठीक है? and temperature 4000 Kelvin, temperature 4000 Kelvin and 2000 Kelvin, ठीक है, respectively. Find the ratio of the radiant energy per second by the first sphere to that of the second sphere. So मुझे dq1 by dq2 निकालना है। अब देखो एरिया 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेडिएंट एनर्जी dq by dt क्या फॉर्मूला था? सिग्मा ea t to the power 4। हालांकि इसमें ब्लैक बॉडी कुछ नहीं बोला है, तो ये दोनों कांस्टेंट हो जाएगा। सेम मटेरियल बोला है तो e भी कांस्टेंट हो जाएगा, तो बचा a एंड t। तो पहला स्फीयर के लिए हम लोग कितना लिखेंगे, बोलो? पहला स्फीयर के लिए लिखेंगे एरिया 1 t to the power 4, दूसरा के लिए एरिया 2 t to the power 2 4। Is it okay everyone? So 4 pi r1 square t14, 4 pi r2 square t24। तो r1 square t14 r2 square into t24। तो r1 क्या बोला था, कितना रेडियस बोला था इसका? पहला वाला था 1 मीटर,
तो 1 का स्क्वायर इंटू टेम्परेचर कितना बोला था, 4000 केल्विन, हाँ 4। और दूसरा वाला का क्या बोला था, कितना रेडियस, 4 स्क्वायर, और इसका टेम्परेचर 2000 का 4। अब देखो 0 0 ये चारों का चारों चला गया, तो 1 इंटू 4 टू दी पावर 4, 4 टू दी पावर 2 इंटू 2 टू दी पावर 4, ये कट के 1 आ जाएगा, मतलब 1:1। ओके, यस सर। इसके बाद एक और छोटा सा चीज है, एकदम छोटा लास्ट चीज, तो मैं बोलूंगा कि ये पार्ट भी हमने खत्म कर दिया, ठीक है। इज इट ओके एवरीवन? यस सर। और मैं इसका रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूं, तो मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा, और मैं कल एक और नया चैप्टर कंप्लीट करता हूं, वो है इसका देख लेता हूं कि वो हीट ट्रांसफर ऑफ हीट का, नहीं हीट का ट्रांसफर नहीं, कैलोरीमेट्री का कितना पोर्शन है, या तो मैं कैलोरीमेट्री करवा दूंगा, नहीं तो साउंड स्टार्ट कर दूंगा। ओके, विंग्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। देखो विंग्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में क्या बोला है, व्हेन अ बॉडी इज हीटेड इट एमिट रेडिएशन ऑफ ऑल वेवलेंथ। जब एक ऑब्जेक्ट को हम लोग गर्म करते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ एमिट करता है, having all wavelength. However, the intensity of the radiation of different wavelength is different. मतलब हर एक वेवलेंथ का इंटेंसिटी अलग है। इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, मतलब एक एनर्जी एक सेकेंड में कितना बार स्ट्राइक कर रहा है और कितना एरिया पे स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू विंग्स, द पीरियड ऑफ वेवलेंथ corresponding to the maximum intensity and the temperature of the body is constant in Kelvin is constant। मतलब विंग्स बोल रहा है जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है उसका जो corresponding वेवलेंथ है, जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है, we can find out by we have some instrument using which we can find out किसका इंटेंसिटी ज्यादा है। जिसका इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है उसका जो corresponding वेवलेंथ है, that wavelength into temperature in Kelvin is a constant. That constant is called Wiens constant, या Wiens displacement constant. The value is 2.89 into 10 to the power 3 meter Kelvin. Is it clear? अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है in terms of astronomy। कैसे, जैसे मानो मैं बोल रहा हूँ सूरज का इतना टेम्परेचर है, मंगल का इतना टेम्परेचर है, बुध का इतना है, बृहस्पति का इतना है, हाँ, हाउ वी डू दैट, दिस वन क्लियर। एक क्वेश्चन देता है तब तुम्हें पता चल जाएगा। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, अ ब्लैक बॉडी एट 1327 डिग्री सेंटीग्रेड, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। पहले मैं बोल देता हूँ दैट टेम्परेचर इज केल्विन विद एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और जितना भी वैल्यू देगा वो डिग्री सेंटीग्रेड में देगा, याद रखना ज्यादातर। अ ब्लैक बॉडी 1327 डिग्री सेंटीग्रेड एमिट मैक्सिमम वेवलेंथ corresponding to a wavelength 3 माइक्रोमीटर, ठीक है। एक ब्लैक बॉडी है, इसका टेम्परेचर इतना है और ये इतना माइक्रोमीटर वेवलेंथ देता है। अच्छा, द टेम्परेचर ऑफ द मून for which the wavelength is, तो टेम्परेचर ऑफ द मून चाहिए, वेवलेंथ कितना रिसीव हो रहा है, 16 माइक्रोमीटर। तो देखो वेरी सिंपल व्हाट वी कैन से कि λ1 T1 इक्वल्स टू λ2 T2। λ1 क्या, 3 माइक्रोमीटर। टेम्परेचर क्या है, इसको केल्विन स्केल में करो तो क्या हो जाएगा, 1600 ना। λ2 कितना है, 16 माइक्रोमीटर एंड टेम्परेचर 2। तो यहां से देखो क्या होगा, माइक्रो माइक्रो कट गया, हाँ, तो T2 कितना हो गया, 3 into 1600 by 16, that is 300 केल्विन, मतलब 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम लोग मून का टेम्परेचर निकल गया ना सर तो टाइम वो तो बात के बात है, जस्ट एक रफ आइडिया दिया है। अब देखो कुछ नहीं, तुम वेरी सिंपल है, हर एक प्लैनेट का जो मतलब हम लोग कहते हैं ना कि दूसरा प्लैनेट से सिग्नल भेजा या इस प्लैनेट से लाइट इतना दिन में आके पहुंचा, तो ये जो लाइट वगैरह आता है उस पता कैसे चलता है, इंटेंसिटी से। तो जब इंटेंसिटी तुम्हें पता चलता है उसका क्रॉसपोंडिंग वेवलेंथ पता चलता है। तो हर एक का ना ऐसे ग्राफ में ना चेंज होता है,
होते होते उसका जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है वो मुझे चाहिए। अगर वो मुझे मिल गया, विंग्स कांस्टेंट मुझे मालूम ही है, सो विंग्स कांस्टेंट इनटू दैट वेवलेंथ इनटू टेम्परेचर, यू गेट द टेम्परेचर ऑफ दैट प्लैनेट। ठीक है, और अगर टेम्परेचर लगभग कोई प्लैनेट का 20 से 30 के आसपास है या 30, 40, 50 के आसपास है, तब उस प्लैनेट में लाइफ पॉसिबल हो सकता है, अगर बाकी कंडीशंस को फुलफिल करे। ये तो ऐसे ही दिया होगा, मालूम नहीं कितना टेम्परेचर है मून का। ओके, गूगल में देख लेना ना मून का टेम्परेचर क्या है। ओके एवरीवन, सो दैट्स इट। मुझे अभी सेंटर में भी जाना पड़ेगा ऑफलाइन क्लास के लिए।